Welcome back once again. After completing the chapter, now we are moving on to the exercise part. So let us solve the exercise. First, the MCQs. The Constitution of India was enacted on. So, students, please remember that enactment and enforcement are two different things. So, enactment was done on 26 November 1949, whereas enforcement माने लागू कब किया गया था, it was on 1950 26 January. Clear? So you need to remember that enactment and enforcement both are the different thing. Clear? The right of judiciary to review an act passed by the legislature is called judicial review. Right? It was discussed in the chapter. Right? हम माने जुडिशियरी जो है वो जुडिशियरी के पास अधिकार है कि जो लेजिस्लेचर ने जो कानून पास किया है वो कानून को फिर से देख सकते हैं, तो वो है जुडिशियल रिव्यू. सुप्रीम कोर्ट कर सकती है ये रिव्यू. डाउरी सिस्टम इज प्रेवलेंट इन साउथ एशिया, राइट? Not particular country, but in the chapter it has described South Asia. दक्षिणी एशियाई देशों में दहेज की प्रथा चालू है. The leader of American civil rights movement who was influenced by Gandhiji's satyagraha was, who was he? Abraham Lincoln? No. J.S. Mill? No, he was Martin Luther King Jr. Vardhaneni Rosamma was a rural woman from Andhra Pradesh who led the. This question belongs to the last topic of our chapter, that is anti-liquor campaign in Andhra Pradesh. It was started in 1991. The woman named Vardhaneni Rosamma who led this campaign. It was the campaign which has the motto of banning the liquor, right? The cheap liquor that was extracted from the coconut and rice. Next is complete the given sentences. The members of the drafting committee of the Indian Constitution were, right? So we just discussed those members' name in the very first page of this chapter. Krishna Swami Iyer, Gopal Swami, B.R. Ambedkar, K.M. Munshi, Mohammad Sadullah, B.L. Mittar, and D.P. Khaitan. And we also knew that some other persons also were there who just helped them, these drafting committee members. They were Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Sarojini Naidu, Dr. Rajendra Prasad, etc. Some dignitaries were there, they helped them, right? The next is constitution of a country provides. किसी country, किसी देश का संविधान क्या provide करता है, क्या उनके मायने रखते हैं. Country provides the fundamental legal framework for the functioning of a country's government. देश को चलाने के लिए उसका संविधान जो है वो कानून और कायदे कानून का फंडामेंटल लीगल फ्रेमवर्क देता है. संवैधानिक तौर पे क्या क्या कानून हो सकते हैं और क्या क्या उस देश के लिए रखे गए हैं, वो सारे लीगल फ्रेमवर्क देश के चलाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है. डाउरी कैन बी डिफाइंड एज. डेफिनेशन ऑफ डाउरी क्या हो सकता है? सिंपली आपको पता ही है, कैश, मनी, वो सब कुछ. लेट अस सी. Dowry can be defined as the money and goods that a bride's family gives to the groom at the time of marriage. शादी के वक्त दुल्हन के फैमिली वाले दूल्हे के फैमिली वालों को जो कुछ भी पैसा और चीज़ें देते हैं वो सब कुछ डाउरी है, दहेज है. नेक्स्ट इज
सॉल्ट सत्याग्रह कैंपेन वॉज बेस्ड ऑन, सॉल्ट सत्याग्रह जो है गांधी जी ने किया था वो किसके आधार पे था? प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट और सत्याग्रह, वो अहिंसक आंदोलन था। गांधी जी की ओर से सभी आंदोलन अहिंसक आंदोलन थे, तो सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह भी उसी में से था। 1991 में क्वेश्चन क्या है? A group of women from दुबगुंता विलेज ऑफ नेलोर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश बिगेन, आंध्र प्रदेश के नेलोर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के समूह ने क्या स्टार्ट किया 1991 में? आपको याद होना चाहिए, यस, एंटी लीकर कैंपेन मूवमेंट चालू किया। District began a protest movement against the widespread practice of alcoholism amongst the male member of their family। उनके परिवार वालों में से जो अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे थे उनका विरोध करना स्टार्ट किया और अल्कोहल बंद करना चाहिए ऐसी डिमांड की, और अल्टीमेटली वो लोग सक्सेसफुल भी हुए। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। What is the constitution? Constitution क्या है? Let us see. Constitution, a small definition is given, is a set of fundamental laws according to which a country can be governed। एक ऐसे संवैधानिक कानूनी तौर तरीके से बने हुए नियम जिसको लेकर कंट्री जो है वो चल सकती है, गवर्न हो सकती है, माने देश चल सकता है, वैसे कायदे कानून, वैसे नियम, उसका सेट, उसका समूह, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड क्वेश्चन, मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के कोई भी दो हमें फीचर्स समझाने हैं, लक्षण समझाने हैं, तो काफ़ी इजी है। तो पहला है फेडरलिज्म, जैसा हमने डिस्कस किया था कि मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। भारत में 3 लेवल की सरकारें हैं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। रिपीट इट, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल, 3 लेवल के गवर्नमेंट है, तो दैट इज़ कॉल्ड फेडरलिज्म। देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? आपको पता है, हमने डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट प्रेजेंट करती है लोगों को, राइट, और पार्लियामेंट ही गवर्नमेंट जो है उसको गाइड करती है, दैट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा है फंडामेंटल राइट्स, सबको संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स में क्या था कि पावर और रिलीजियन, ये बात, और एक मेन बात ये कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये 3 जो शाखाएं हैं भारत सरकार की, गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस जो है, मेन एस्पेक्ट्स जो है, वो तीनों के पावर्स अलग अलग तीनों को दिए गए हैं और अपने अपने हिसाब से अपने पावर का यूज़ करना है, कोई एक दूसरे के अंडर में नहीं है। That is the separation of power. So these are the key features of Indian Constitution. Repeat: federalism, more than one level of government, parliamentary form of government, then fundamental rights, संवैधानिक अधिकार, and separation of powers, judiciary, legislature, and executive. Clear? Then third question, name any 2 important dowry laws in India। तो जब हमने वो डिस्कस किया तब 3 लॉज की चर्चा हुई थी, उसमें 2 इम्पोर्टेंट लॉज है कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 एंड वीमेन प्रोटेक्शन फ्रॉम डाउरी एक्ट ऑफ 2005। ये 2 इम्पोर्टेंट लॉ ऐसे हैं जो कोई भी महिला, परिणीत महिला को दहेज से बचाता है, अगर वो चाहे तो वो कंप्लेन कर सकती है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट? डिसेंट वर्ड जो है उसका क्या मतलब है? डिसेंट मीन्स एन एक्सप्रेशन और डिसएग्रीमेंट और अपोजिशन। डिसएग्री होना
नहीं मानना, नाराज़गी भी होना या फिर रिजेक्ट भी करना, ये सारे उसके मतलब है, राइट। सो डिसएग्रीमेंट और अपोजिशन। नेक्स्ट है सोल टैक्स जो है वो कब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था। इम्पोज करना माने लागू करना। यहाँ पे इम्पोज का थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, चाहे पब्लिक चाहे या ना चाहे फिर भी इम्पोज कर देना, दैट इज द इम्पोज। 1882 में सोल टैक्स इम्पोज किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट, आंसर इन डिटेल। फर्स्ट, हाउ इज द कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल लेजिस्लेशन। क्वेश्चन पहले समझना है। सारे लेजिस्लेशन माने कायदे कानून, उस कायदे कानून का प्राइमरी सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है, माने सबसे पहला सोर्स माने कायदे कानून जो है वो कहाँ से, सोर्स माने कहाँ से है, राइट। तो क्यों कॉन्स्टिट्यूशन उसका प्राइमरी सोर्स है लेजिस्लेशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बताते हैं कायदे कानून। इट प्रोवाइड्स, कुछ फीचर्स है उसकी वजह से हमें रियलाइज़ होता है, मालूम होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही लेजिस्लेशन का प्राइमरी सोर्स है, राइट। सो इट प्रोवाइड्स द बेसिक गाइडलाइंस फॉर गवर्नेंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर डेमोक्रेसी। हमारा देश लोकशाही है, लोकशाही के आधार पे, उसके सिद्धांतों के आधार पे ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है और उसके आधार से ही गवर्नमेंट अपना गवर्नेंस करती है। तो पहला ये पॉइंट है। दूसरा है इट डिफाइंस द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। कोई भी देश की पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही मालूम होता है। जब हमने चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तब ये बात आई थी और हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि इंट्रिंसिक वर्ड का हमने जिक्र किया था। आंतरिक बाबत जो होती है देश की, वो अगर हमें जाननी है किसी भी देश का तो कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। वी कम टू नो अबाउट दैट। इट ऑथोराइजेज अ कंट्रीज गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज certain powers and puts a check on their use in an arbitrary way। गवर्नमेंट जो है वो अपने पावर का मिसयूज़ ना करे, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिमिटेशन रखती भी है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलता है वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर का मन में जैसे आए वैसे तरीके से मिसयूज़ ना हो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रेगुलेटरीज बनाई है। इट आउटलाइंस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू लेजिस्लेशंस और लॉज फॉर द कंट्री। देश के लिए नए कायदे कानून बनाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गाइडेंस देता है। देश में कुछ कायदे कानून जो है उसको अगर ठीक नहीं है तो सुधार लाने के लिए भी, और अगर रिमूव करना है तो भी कॉन्स्टिट्यूशन से हेल्प मिलती है। ये फीचर की वजह से भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहलाता है सारे लेजिस्लेशन का सोर्स। एंड द लास्ट, इट लेज डाउन द ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री। देश के लोगों का अधिकार एंड जिम्मेदारी वो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या देश के नागरिक होते हुए नागरिक के तौर पे हमारी जो जिम्मेदारी होती है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, और देश के नागरिक होते हुए हर एक नागरिक का अधिकार क्या है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से मालूम पड़ता है। सो इट वाज अबाउट द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से पता चलता है कि वो लेजिस्लेशन का प्राइमरी सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are fundamental rights and what is the purpose of including them in Indian constitution, right। फंडामेंटल राइट्स क्या है और फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने का क्या पर्पस है, क्या इरादा है, क्या हेतु।
संवैधानिक अधिकार क्या है जो भारत के हर एक नागरिक को मिलता है, और उस अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने के पीछे क्या वजह है, राइट? सो आंसर, fundamental rights are rights guaranteed to the people of India by the makers of the Indian Constitution. Constitution बनाने वालों की तरफ से, माने Constitution की तरफ से भारत के हर एक नागरिक को जो अधिकार मिल रहा है, guaranteed अधिकार, वो है fundamental rights. These are provided to guard against the misuse of power by the state. सरकार हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको वो अपने पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते, वो फंडामेंटल राइट्स में मिलता है देश के हर एक नागरिक को. दीज राइट्स आर इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान का तीसरा जो हिस्सा है उसमें ये फंडामेंटल राइट्स का इंक्लूजन किया गया है, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने के ये कारण है. सबसे पहला, गार्ड द इंडियन सिटीजन अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय द स्टेट, जैसे कि हमने पहले देखा. नेक्स्ट इज मेक देम फंडामेंटल सो दैट नीदर द लेजिस्लेचर नॉर द एग्जीक्यूटिव कैन ओवरराइड देम. वो फंडामेंटल है, वो आधिकारिक तौर पे मिला है, वो एक कंपलसरी है, इसीलिए ना तो लेजिस्लेचर ना तो एग्जीक्यूटिव उसको ओवरराइड कर सकते हैं, माने उसके ऊपर जाके कोई उसमें सुधार लाना ये किसी के बस की बात नहीं है, इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है. थर्ड वन है मेक देम इनवायोलेबल राइट्स सो दैट अ सिटीजन कैन मूव द कोर्ट ऑफ लॉ इफ ही और शी इज डिनाइड दिस राइट. भारत के नागरिक होते हुए, चाहे फिर वो गरीब हो या अमीर से अमीर हो, चाहे वो बंगले में रह रहा हो, चाहे वो रोड साइड में रह रहे हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो वेंडर हो, कुछ भी हो, एम्प्लॉई हो, शॉपकीपर हो, बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सबको अधिकार मिलता है, चाहे वो इवन बेगर भी क्यों ना हो. बट वो अधिकार अगर कोई मिलने से रोकता है, वो अधिकार की प्रैक्टिस करने से रोकता है, तो जिसका अधिकार नहीं मिल रहा है, जिसको अधिकार नहीं मिल रहा है, वो कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं. जिसको अधिकार नहीं मिला है वो कोर्ट में जाके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं. प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़. सॉरी, एक और पॉइंट है, मेक देम इनवायोलेबल राइट्स सो दैट अ सिटीजन कैन मूव. यस, वो अभी हमने देखा. नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़. माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो है उसकी पहचान, लघुमती जिसको कहते हैं, देश की टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से उस कम्युनिटी की संख्या कितनी है, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की, उसके आधार पे उसको माइनॉरिटी का लेबल दिया जाता है, और वो माइनॉरिटी की पहचान और उसके अस्तित्व को रिकॉर्ड करना, प्रोटेक्ट करना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें सम्मिलित फंडामेंटल राइट्स जो है उसको उसमें ये इंक्लूडेड है, वो करता है. संवैधानिक अधिकार की वजह से रक्षण मिलता है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को अपने पहचान और अपने अस्तित्व की रक्षा करने का. एंड द लास्ट, नॉट मेक देम एब्सोल्यूट. वो अधिकार सबको मिलते हैं, बट वो इतने एब्सोल्यूट भी नहीं है कि कोई उसका मिसयूज़ भी कर सके. Constitution imposes certain limits on the enjoyment of these rights in the interest of society. अगर कभी ऐसा हुआ कि आपातकालीन परिस्थिति हुई तो सबको ये अधिकार दिया गया है, वो वापस भी ले सकती है, सस्पेंड भी कर सकती है, कैंसिल भी कर सकती है, पोस्टपोन भी कर सकती है. कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सारे अधिकार जो है वो रिजर्व रखे हैं. माने अभी कोरोना सिचुएशन है, सो यू are not allowed in the red zone, you are not at all allowed to enjoy your fundamental rights. For example, right to go out and right to stay outside the home, and many rights are there.
right to enjoy outside, but this is national emergency, and in terms of in such regards, many times government withdrew your fundamental rights, government even suspends your fundamental rights for some days or some weeks or even some months, right? Next question: enumerate the basic outline of various laws that have been brought into effect to curb the practice of dowry in India. भारत में दहेज प्रथा बंद करने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। वो कानून जो है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। बेसिक लॉज आउटलाइन किए गए हैं। यहाँ पे कर्ब वर्ड यूज़ किया है। कर्ब का मतलब है कम करना या रिमूव करना। Government of India has passed several civil and criminal laws and special legislative acts to curb the practice of dowry in India. तो पहला है The Dowry Prohibition Act of 1961 prohibits the payment of dowry. 61 में बना ये कानून जो क्लियरली कहता है कि दहेज का पेमेंट, दहेज देना प्रोहिबिशन है, प्रतिबंधित है। ऐसा नहीं है कि हर बार मांगा ही जाता है, कभी कभी सामने से दिया भी जाता है, वो भी गैर कानूनी है वो एक्ट के तहत। Sections 304B, 406 and 498A of the Indian Penal Code, that is IPC, have been enacted to make it easier for the wife to seek redressal for wrongful acts perpetrated by the in-laws. ये सारी सेक्शंस जो है आईपीसी की सेक्शन वो एनेक्ट की गई है, माने लागू की गई है, जिसकी वजह से वाइफ जो है वो सॉल्यूशन मांग सकती है अपने इन-लॉज, अपने पति या अपने ससुराल वालों की तरफ से उनके ऊपर जो दुख किया गया है, राइट, क्राइम किया गया है, गुनाह किया गया है, गलत किया गया है, उसका वो सॉल्यूशन मांग सकती है, मुआवजा मांग सकती है। A civil remedy was enforced in 2005. सामाजिक तौर पे भी एक कानून बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005, 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं को रक्षा दिलाने के लिए ये कानून बनाया गया है 2005 में, राइट। To protect women against any harassment including those inflicted by her husband or in-laws for dowry. अपने पति या अपने ससुराल वालों की तरफ से दहेज को लेकर सताया जा रहा हो तो उसके अगेंस्ट में एक सिविल लेवल पे कानून बनाया गया है जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट ऑफ 2005. नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, लास्ट ऑफ दिस आंसर इज द डाउरी प्रोहिबिशन. डाउरी प्रोहिबिशन माने दहेज को रोकने वाला एक रूल, राइट, मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स टू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम. तो उसका एक लिस्ट बनाते हैं मेंटेन करने के लिए कि इतना ही होना चाहिए. वो 1985 में आया था. इंटेंस टू डॉक्यूमेंट असेट्स एंड प्रोवाइड कंप्लेनेंट्स विद द स्ट्रॉन्गर एविडेंस. अगर प्रूफ के साथ ये सब कुछ पेश किया जाए तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है. तो वो था 1985 का डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. सो दहेज को लेकर ये सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है. नेक्स्ट इज व्हाई इज डिसेंट इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी. किसी लॉ या कि नाराजगी या मंजूर ना होना वो क्यों डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट है. सब्सटेंशिएट योर आंसर विथ सम एग्जांपल्स डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर और फ्रॉम अ रिसेंट एग्जांपल रेड इन न्यूज़पेपर और मैगजीन. अभी मैगजीन या न्यूज़पेपर में अगर कुछ आपने सुना है, किसी लॉ का विरोध जो किया हुआ हो तो उसको लेकर या फिर चैप्टर में जो दिखाए गए वो एग्जांपल को लेकर अपना एक एलेबरेशन कीजिए. So let us see the answer.
An expression of disagreement or opposition to oppressive or unjust law is termed as dissent. Dissent जो है उसका क्या डेफिनेशन है कि गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बनाया है तो उस लॉ के सामने नाराज़गी व्यक्त करना या फिर उस लॉ के सामने डिसएग्रीमेंट करना, दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट. डिसेंट स्पेशली उसके लिए वर्ड है. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी बिकॉज इट हेल्प्स टू एक्सप्रेस द पीपल्स फ्रीडम टू अपोज अ लॉ दैट वायोलेट्स देयर इंटरेस्ट. डेमोक्रेसी में वो बहुत ही खास माना जाता है अगर सही तरीके में हो, सही मायनों में हो तो, क्योंकि वो लोगों की फ्रीडम को, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम जो है, राइट, उसको वो हेल्प करता है कि अगर ये लॉ ठीक नहीं है तो आपकी एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम जो है उसका यूज़ करके अगर आपके इंटरेस्ट के अगेन में अगर उससे आपको नुकसान हो रहा है, ऐसे कायदे कानून अगर बन गए हैं तो आप उसका विरोध कर सकते हैं. एग्जाम्पल दिया गया है. एन एग्जाम्पल ऑफ डिसेंट फ्रॉम इंडियाज नेशनल मूवमेंट वॉज द सोल्ट सत्याग्रह लेड बाय महात्मा गांधी. जैसा हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, महात्मा गांधी जी का सोल्ट सत्याग्रह वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है. 1882 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोल्ट लॉ दाखिल किया गया था जिसमें बताया गया था कि लॉ का प्रोडक्शन या कलेक्शन अगर कोई करता है कोई कंपनी के परमिशन के बगैर तो वो अनलॉफुल डिक्लेयर किया जाएगा, माने वो गैर कानूनी होगा. और उसके उपरांत भी टैक्स के सोल्ट के ऊपर टैक्स लागू कर दिया गया था जिसकी वजह से पुअर लोगों की लाइफ को काफ़ी नुकसान हुआ था. तो उसको एज एन एक्ट ऑफ डिसेंट उसके विरोध के चलते महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट किया था 2930 में. और उन्होंने ये मूवमेंट सोल्ट लॉ के अगेंस्ट में, काले कानून के विरोध में ये मूवमेंट स्टार्ट किया था. 12 मार्च 1930 में वो 80 फॉलोअर्स को लेकर साबरमती आश्रम से निकले थे और गए थे कोस्टल विलेज दांडी करके एक दरिया किनारे वाला गांव है गुजरात में ही, वहाँ पे गए थे तकरीबन 200 माइल से ज़्यादा. एंड दांडी जाकर गांधी जी ने एक स्मॉल लंप ऑफ नेचुरल सॉल्ट माने नमक का छोटा सा गड्ढा जो है वो उठाकर गांधी जी ने वो नमक वाले काले कानून का विरोध किया था और उसी वजह से ये सिंबल डिसेंट का सिंबल बन गया था. The last question of the chapter is, what do you know about the anti-liquor campaign of 1991 in आंध्र प्रदेश. जैसा चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि आंध्र प्रदेश में 1991 में जो एंटी लिकर कैंपेन स्टार्ट हुआ था उसके बारे में क्या पता है, राइट. तो समराइज वे में तो पता ही है. लेट अस सी द आंसर. इट वाज अ प्रोटेस्ट मूवमेंट बाय अ ग्रुप ऑफ विमेन फ्रॉम दुबगुंता विलेज ऑफ नेलोर डिस्ट्रिक्ट. आंध्र प्रदेश के नेलोर डिस्ट्रिक्ट के दुबगुंता विलेज में ये कुछ महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया एक मूवमेंट था. और वो मूवमेंट किसके अगेंस्ट में था कि उनके परिवार में पुरुष सभ्यों के द्वारा बहुत ही बड़े पैमाने पे अल्कोहल का कंजप्शन हो रहा था. उसको लेकर ये लोग बहुत चिंतित थे, इसलिए उनके विरोध में ये स्टार्ट किया था. और ये सारी महिलाओं ने एक स्ट्रगल स्टार्ट किया जिसमें गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज किया कि ये जो चीप लीकर है माने सस्ते वाला दारू, वो जो पीते थे अराक जो बनता था वो कोकोनट और राइस के एक्सेप्ट्स में से बनता था और वो बहुत सस्ता था, बट उससे नुकसान होता होगा या वो नशीली तो चीज़ थी, इसलिए उनका विरोध किया जा रहा था. और वो गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही थी, इसलिए उनका विरोध किया गया. गवर्नमेंट के अपोज किया विरोध में उनका
स्ट्रगल किया गया, और वो किसी एक ओल्ड वुमन ने, जिसका नाम था वर्धानेनी रोसम्मा, उन्होंने ये स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया? जब वो अपने ही गांव में कोई लोकल अराक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा लीकर का सप्लाई जो आया था, वो अनलोडिंग हो रहा था अपने गांव में, उसको रोक कर रोसम्मा ने ये स्टार्ट किया, और एज ए रिज़ल्ट उन्होंने गांव की और महिलाओं को भी लीड करके प्रोटेस्ट किए, और वो प्रोटेस्ट अंत में इतने फोर्सफुल निकले कि अराक ट्रेडर्स जो थे गांव में, अराक बेचने वाले ट्रेडर्स, वो गांव छोड़कर चले गए। और उसके रिज़ल्ट में आगे जाके कुछ टाइम के बाद ये बैन स्टेट वाइड बन गया, माने पूरे राज्य में ये विरोध चलने लगा। और फिर ये जो अल्कोहल का सेलिंग चल रहा था, वो 1995 में पूरे राज्य में अल्कोहल का सेलिंग जो है वो बंद हो गया। तो इतने बड़े पैमाने पे भी हो सकता है, अगर आपका डिसेंटमेंट राइट एंड वैलिड हो तो आपको काफ़ी सपोर्ट भी मिल सकता है। सो हियर विद दिस वी आर कंक्लूडिंग दिस चैप्टर. आई होप देयर इज़ नो डाउट in the explanation of chapter. Still, if there is a doubt, you can contact me, you can text me, you can call me, right, in the explanation of even question answers also. So here with this we are completing our third chapter. First we did first of history, that is when, where and how. Then we took up the chapter of geography, chapter number 11, that is types of resources. And recently we just completed the civics first chapter, that is chapter number 20, the Indian Constitution and legal framework of India. So in the next time we'll meet, we'll take up the history chapter number 2. So till then, Jai Hind.